زندگی کے حسین سفروں میں ایک یادگار سفر گلگت بلتستان کی دل فریب وادیوں کا سفر ہے۔ حسن اور رنگوں سے لبریز گلگت بلتستان نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے خوبصورت ترین خطوں میں سے ایک ہے۔ یہ خطہ اپنی خوبصورتی اور تاریخی پس منظر کی وجہ سے سیاحت میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ اس جنت ارضی میں بہتی ندیاں، اونچے پہاڑ، برفانی چوٹیاں، پتھریلے بنجر پہاڑی سلسلے اور گلیشیئر سمیت ہر طرح کے جغرافیائی نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس خطے کی خوبصورت وادیوں میں خنزہ نگر اور نلتر کی وادیاں اپنی دلکشی کی وجہ سے پوری دنیا میں جانی جاتی ہیں۔ یہ اس علاقے کے لازوال حسن کا ہی جوہر ہے جو آج مسافران شوق وادی خنزہ نگر، یہ خوبصورت وادی گلگت سے تقریباً 112 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ اس وادی کی طرف آگے بڑھتے ہوئے ہمیں اپنی چاروں جانب بلند بالا پہاڑی چوٹیاں نظر آئیں، اور انہی چوٹیوں کے جرمٹ میں ہماری نظر ایک خوبصورت سفید پہاڑی پر پڑی جو پہلو بدل بدل کر اپنے حسن کے جلوے بکھیر رہی تھی۔ یہ اسی کے حسن کا سحر تھا کہ راستم تر وسعت کے ساتھ ہمارا استقبال کیا، اور ہم اس کی دلکشی اور رعنائی سے کافی دیر تک لطف اندوز ہوتے رہے۔ بلندی میں آسمان کو چھوتی یہ چوٹی پاکستان اور دنیا بھر میں راکا پوشی کے نام سے مشہور ہے۔ پہاڑوں کی شہزادی کے دامن میں کچھ وقت گزارنے کے بعد ہم نے اس کا حسن کیمرے کی آنکھ میں سمویا اور اگلی منزل کی طرف چل نکلے۔ نگر اور ہنزہ شہرائے کراکرم کے دونوں اطراف میں آباد ہیں۔ یہ علاقے بلند چوٹیوں، گلیشیئرز، آبشاروں اور دریاؤں کی وجہ سے نہایت خوبصورتی کے حامل ہیں۔ حسن اور رنگوں سے لبریز ان علاقوں کی دلکشی کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے ہر سال ہزاروں سیاح ان خوبصورت وادیوں کا رخ کرتے ہیں۔ ان دلفریب وادیوں کی سیر کی ایک اور وجہ بلند بالا پہاڑوں کے دامن میں لپٹی ہوئی شاہراہ کراکرم کا خوبصورت نظارہ بھی ہے۔ دیوقامت پہاڑوں کے سینوں میں شگاف ڈال کر بنائی جانے والی یہ شاہراہ صرف ایک طویل سڑک ہی نہیں بلکہ صدیوں پرانی تہذیب اور ثقافت کی علمبردار بھی ہے۔ یہ شاہراہ مغربی دنیا میں سلک روڈ کے نام سے پہچانے جانے والے اسی قدیم راستے پر تعمیر کی گئی ہے جو چین سے آنے والے تاجر اختیار کیا کرتے تھے۔ یوں تو شاہراہ کراکرم کا ہر نظارہ ایک دلفریب منظر پیش کرتا ہے، لیکن خنزہ نگر میں اس شاہراہ کا حسن اپنے پورے جوبن پر ہوتا ہے۔ شاہراہ کی دونوں جانب سرسبز لہلہاتے درخت آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے محسوس ہوتے ہیں۔ طرز زندگی سادہ ہے۔ یہاں کی 90% سے زائد آبادی پڑھی لکھی ہے، اور یہ لوگ نہایت خوبصورت، مہذب، امن پسند اور مہمان نواز ہیں۔ کیا کر رہے ہو آپ؟ یہ ہم خوبانی پلاسٹک میں ڈال رہے ہیں۔ اچھا، خوبانی پلاسٹک میں ڈال رہے ہو، تو یہ خوبانی کہاں سے آئی ہے؟ درخت۔ کون سے درخت؟ یہ والا درخت۔ تو ادھر بہت زیادہ درخت ہیں خوبانی کے؟ اچھا، تو آپ اسکول نہیں جاتی ہو؟ ہمارے
छुट्टियाँ हो गई। तो यहाँ कौन सी ज़बान बोलते हो आप? क्या? ब्रूशस्ती। ब्रूशस्की। ठीक। गिलगित बाल्टिस्तान में मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 5 ज़बानें बोली जाती हैं। जी। गिलगित सिटी में शिना बोली जाती है। अच्छा। हमजा में जो है ना ब्रूशस की बोली जाती है। अलीबाद में बोली जाती है, करीमाबाद में बोली जाती है, अलतित में बोली जाती है। इसको हम ब्रूशस की कहते हैं। इस गांव के बाद आगे जो पुल आएगा, बड़ा पुल, उससे आगे वखी बोली जाती है। वखी। अच्छा। ताजिकिस्तान से जो आए थे वो ताजिक बोलते हैं। जी। ताजिकिस्तान से आके इधर सेटल हुए थे, उसको बोलते हैं ताजिक। उनका ज़बान का नाम है वखी। अच्छा। ठीक है, वखी बोली जाती है आगे खुंजर अब टोक तक। हुंजा में खुबानी, चेरी, अखरोट और सेब के दरख्त बकसरत नज़र आते हैं। यहाँ मुख्तलिफ इक़साम की खुबानियाँ पाई जाती हैं जो अपने बेहतरीन जायके और उम्दा खुशबू की वजह से बहुत मशहूर हैं। यही वजह है कि वादी हुंजा को खुबानी का देश भी कहा जाता है। यहाँ सब लोकल चीज़ें, अच्छा। लोकल चीज़ें, सब मेवा वाला, अच्छा, ये जितनी चीज़ें लोकल हैं सारा लोकल है। खुबानी, आलू, अच्छा अखरोट, बादाम, अच्छा नाशपाती भी होता है। इस वादी हैरत के हुस्न की झलक सिर्फ बहार के मौसम में ही नहीं बल्कि मौसम ख़ज़ा में लाल, पीले, सब्ज और सुनहरी रंगों की बरसात की शक्ल में भी देखी जा सकती है। ये वादी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि अपनी साफ सुथरी आब व हवा की वजह से इंतहाई सेहत अफजा भी है। इस वादी की खूबसूरती अपने अंदर एक सहर अंगेज क़ुव्वत रखती है जो मुसाफिरान शौक को दुनिया के दूर दराज इलाकों से अपनी तरफ खींच लाती है। हमारा ये मुख्तसर काफिला पथरीले पहाड़ों के दामन में तहदे निगाह फैली हुई सड़क पर बढ़ता चला जा रहा था और हम कौसारों के दिल फरेब नज़ारों में डूबते चले जा रहे थे। माँ अंधेरी सुरंग में दाखिल हो गई। एक तवील मुसाफत के बाद जब गाड़ी इस तारीक सुरंग से बाहर निकली तो एक खूबसूरत झील का रूह परवर नजारा हमारी आंखों के सामने था। झील के फैरो दरमियान झील के नीलगू पानियों में कश्ती रानी इस सफर का यादगार तजर्बा बन जाता है। मुश्तमिल ये झील अताबाद झील के नाम से जानी जाती है। 2010 से पहले अताबाद झील की जगह एक गांव आबाद था, लेकिन साल 2010 के एक बदकिस्मत लम्हे ने एक ऐसी लैंडस्लाइडिंग देखी जिसके बाइस तकरीबन 4 माह तक दरिया हुंजा का बहाव रुका रहा और इस गांव में जिंदगी की हरारत 109 मीटर पानी के नीचे दबका रह गई। लेकिन आज ये झील एक तफरीही मुकाम का दर्जा हासिल कर चुकी है। इसका शुमार पाकिस्तान की खूबसूरत झीलों में किया जाता है और मुसाफिरान जुस्तजू दूर दराज इलाकों से इसका हुस्न देखने के लिए आते हैं। इस सरजमीन की नगरी नगरी दिल फरेब नजारों से मुज़य्यन है। इन खूबसूरत नज़ारों में फसू कॉन्स अपनी मुनफरिद हदोहाल की वजह से सारी दुनिया में मशहूर हैं। ये कॉन्स दूर से ही अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने लगती हैं। जो आप इनके करीब बढ़ते जाते हैं इनकी इनफरादियत और दिलकशी में इजाफा होता जाता है। खुंजरा पास जाते हुए दिलकश और दिलफरेब नज़ारे हर थोड़ी देर बाद आपको रुकने पर मजबूर करते हैं, जैसे इस पुरानी तर्ज पर बने हुए लकड़ी के पुल ने हमारे कदम रोक लिए। बुलंद कामत चोटियों के दामन में बनाया गया ये पुल एक नाकाबिले यकीन और नाकाबिले फरामोश मंजर पेश करता है।
हुंजा से 80 किलोमीटर के फासले पर सोस नामी एक कस्बा आता है जो शहराए कराकोरम पर पाकिस्तान का आखिरी कस्बा है। इस जगह पर आते ही ऐसे लगता है कि आप ट्रकों की किसी वसीओ अरीज बस्ती में आ गए हो। यहाँ एक ड्राई पोर्ट भी है जहाँ चीन से आने और चीन को जाने वाले सामान तिजारत को महफूज रखा जाता है। सो से शहराए कराकोरम की बल खाती सड़क पर सफर करते हुए हम खुंजराब नेशनल पार्क में दाखिल हो गए। पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में वाक़ई ये पार्क बहुत सी नायाब जंगली हयात का मस्कन है। सो से आगे शहराए कराकोरम दुश्वार पहाड़ों में दाखिल हो जाती है और दराए खुंजराब तक 80 किलोमीटर की तकरीबन चढ़ाई है। दियोकामत पहाड़ों के दामन में शहराए कराकोरम पर चलते हुए हम बिलाहर खुंजराब पास पहुंच गए। दराए खुंजराब के इर्द गिर्द कुछ पहाड़ ताज़ा बर्फ से ढके हुए थे। यहाँ सयाहों का एक हुजूम था जो मुख्तलिफ जावियों से फोटो खिंचवाने में मसरूफ थे। हमने भी चीनी बारक के मेहराब के साथ दर्जन बार तस्वीर बनवाई और इर्द गिर्द के मंजर से लुत्फ अंदोज होने लगे। फिर हमारी मुलाकात हुई इन साहिब से। तो ये जो जानवर हैं इनका नाम क्या है? इनका नाम सर याक है, उर्दू में इनको खुशगाय कहते हैं। खुशगाय। खुशगाय इनके ये जो है इधर ठंडे इलाके में पाए जाते हैं, खुंजरा पास। ये बर्फ में खुश रहते हैं सर्द इलाके में, और गर्मी में ये मर जाते हैं, गर्मी में बर्दाश्त नहीं करते। कुछ देर ही बाद सख्त तरीन किस्म के सर दर्द ने हमें आन पकड़ा और हमने फौरन खुंजराब पास से राह फरार इख्तियार की। हम खुंजराब पास से नीचे की तरफ आ रहे हैं। वहाँ तकरीबन हमने स्टे किया अराउंड 40-45 मिनट्स। तो उसमें ऑक्सीजन कम होने की वजह से हमारी सेहत ख़राब हो गई। सर यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम है ना सर यहाँ पे। अच्छा। और जब जिस वक्त भी आप यहाँ आएंगे तो तकरीबन सूखा खुबानी जो है ना वो ठीक रहता है। अच्छा। तकरीबन इसके लिए हाइट के लिए ठीक। और ज़्यादा अगर कोई मसला हो तो फ़ौरन नीचे डाउन पे जाना चाहिए। ओके ठीक। और ये खुंजरा पास जो है आपको पता है कि 16,002 फुट बुलंदी पे है। सूखी खुबानी तो हमारे पास दस्तयाब न थी, लेकिन हमने एक और मुजर्रब देसी नुस्खे का बंदोबस्त कर रखा था और ये है वो मुजर्रब देसी नुस्खा। हमारा देसी नुस्खा इतना मुअस्सर साबित हुआ कि 5 मिनट के अंदर सारी बीमारियां इसने बाहर निकाल फेंकी और हम दोबारा से तरोताज़ा होकर शहराए रेशम के दिल फरेब हुस्न में होता ज़ना हो गए।